أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ آئندہ جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ 5 نمازوں کی بہت فضیلت ہے اور بہت فائدے ہیں، اس دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ نماز فجر کے بارے میں ہے۔ تو نماز فجر کے بڑے فائدے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک مسلمان مرد یا عورت ہو، اس پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور نماز فجر اس لحاظ سے اہم ہے کہ ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز اللہ کو سجدہ کر کے کرتا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی آخرت میں۔ اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی، بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ تو میرے عزیزوں، فجر کی نماز کے بہت بڑے فائدے ہیں جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ فجر کی نماز کا پہلا فائدہ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا، اور اس نماز کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور بندے کے دن کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ دن آسانی کے ساتھ گزرتا ہے، دن کی مشکلات کم ہو جاتی ہیں، بندے کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ میرے بھائی بہنیں ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا وقت لگتا ہے اور اس وقت میں ہم کوئی دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات 100% شیور ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو آپ کے سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی رہتی ہے، یعنی آپ دن میں جو بھی کام ہے آپ کے وہ بہت جلدی سے اور بہت اچھے طریقے سے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی نماز نہیں پڑھتے تو ہر کام میں مشکلات پریشانیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ پھر شیطان ہمارے کاموں میں دخل اندازی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ذمہ ہے اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ وہ بھی اٹھا لیتا ہے۔ اور فجر کی نماز کا دوسرا فائدہ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھ لی تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات تک نماز پڑھی ہے، اور جس آدمی نے فجر کی نماز بھی بعد جماعت پڑھ لی وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ تو سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ رات کو سوئے، کہ ایک بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے رات کو سو جائے اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر و ثواب عطا کرتا ہے کہ پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب، ایک عشاء کی نماز با جماعت اور دوسرا فجر کی نماز با جماعت۔ یہ مرد حضرات کے لیے ہے، عورتیں تو گھروں میں ہی پڑھیں گی۔
और फजर की नमाज का तीसरा बड़ा फायदा ये है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की 2 सुन्नत रकतें दुनिया और दुनिया में जो कुछ है इस तमाम से बेहतर है। ये देखिए, हम इस दुनिया के लिए नमाज को छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि फजर की 2 रकतें दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर है। तो दुनिया की क्या हैसियत है कि दुनिया की वजह से हमें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। और फजर की नमाज का चौथा बड़ा फायदा वो ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास दिन और रात के फरिश्ते आते हैं और ये फरिश्ते फजर और असर की नमाज में जमा होते हैं और फिर ये फरिश्ते ऊपर अल्लाह पाक के पास जाते हैं। अल्लाह ताला सब जानता है, लेकिन फिर भी दिन और रात वाले फरिश्तों से पूछता है कि जब तुम मेरे बंदे के पास से आए हो तो तुमने इसको किस हालत में छोड़ा है। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह, तेरा बंदा नमाज पढ़ रहा था। फजर की नमाज जिसने पढ़ी, कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो फजर की नमाज बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ते हैं। और फरिश्ते ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला को बयान करते हैं, ऐ अल्लाह, हम तेरे बंदे के पास ऐसी हालत में आए हैं कि वो नमाज पढ़ रहा था, तेरे सामने झुका हुआ था। और मेरे अजीज भाइयों, फजर की नमाज का 5वां बड़ा फायदा ये है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से अपनी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता करने की दुआ फरमाई है कि अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। तो मेरे अजीजों, जो बंदा अपने दिन का आगाज अल्लाह की याद से, उसकी नमाज से करेगा तो यकीनन उसके हर काम में अल्लाह की तरफ से बरकत अता होगी। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जंग के लिए कोई लश्कर रवाना फरमाते तो फजर के वक्त मुंह अंधेरे ही रवाना फरमाते थे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना तिजारती माल दूसरे इलाकों में भेजते तो वो भी सुबह सुबह ही भेज देते थे, और इनके इस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी तिजारत में बरकत डाल दी और वो बड़े खुशहाल और मालदार हो गए। यानी जो बंदा अपने दिन का आगाज अल्लाह ताला को सजदा करने के बाद करता है तो उसके हर काम में अल्लाह ताला की मदद शामिल होती है। और नमाज फजर का जो छठा बड़ा फायदा है, ये सही मुस्लिम में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने सुबह की नमाज बाजमात अदा की वो शख्स अल्लाह के ज़ुम्मे हिफाजत में आ गया। पास तुम में से किसी से अल्लाह ताला आपके ज़िम्मे के बारे में किसी चीज का मुतालबा ना करे। पास जिस शख्स से इसने अपने ज़िम्मे के बारे में कोई मुतालबा कर दिया तो वो उसको पकड़ लेगा और औंधे मुंह जहन्नम में फेंक देगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बरदैन नमाजें अदा की, यानी 2 ठंडक वाली नमाजें, वो जन्नत में जाएगा। और बरदैन से मुराद नमाज फजर और नमाज असर है, और बर्द से मुराद ठंडक है। इन 2 नमाजों को बरदैन इसी वजह से कहा गया है कि जिस वक्त इनकी अदायगी का वक्त होता है, इस वक्त दिन ठंडा हो जाता है और सूरज की हरारत कम हो जाती है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की 2 रकतें तमाम दुनिया से ज्यादा बेहतर हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज से पहले की 2 रकतों के बारे में फरमाया, यानी ये रकतें मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब है।
सुभान अल्लाह। और मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, नमाज पढ़ने के इतने ज्यादा फायदे हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और नमाजों का हमारे जिस्म पर भी बहुत अच्छे असरात होते हैं। नमाज इंसान को गफलत से निकाल देती है। हदीस पाक है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझ पर कोई नसीहत असर नहीं करती, यानी कोई बयान असर नहीं करता, तकरीरें सुनता हूँ, बयान सुनता हूँ, लेकिन दिल पे असर नहीं होता, तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, लेकिन एक वजह कि जो आदमी फजर की नमाज नहीं पढ़ता, शैतान उसके कान में पेशाब करता है। तो मेरे अजीजों, जिसके कान में शैतान पेशाब कर दे, उस पर नसीहत असर नहीं करती, उसका दिल सख्त हो जाता है, और फजर की नमाज ना पढ़ने की वजह से इंसान का दिल सख्त हो जाता है। और मेरे अल्लाह करीम ने कुरान पाक में फजर के वक़्त की कसम भी खाई है, वल फजर, ये पूरी सूरत भी है। और फिर मेरा अल्लाह आगे फरमाता है कि इस कसम में अक्लमंदों के लिए नसीहत है। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जो शख्स फजर के वक्त उठता है, अल्लाह ताला उसको बसीरत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो ये देखिए कि ये सातवां कितना बड़ा फायदा है अल्लाह की तरफ से, कि जो बंदा नमाज फजर पढ़ता है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे बसीरत अता हो जाती है। अल्लाह ताला उसको समझ अता फरमा देता है। अल्लाह ताला उसके दिल पर हिदायत का दरवाजे को खोल देते हैं। यानी जो कहता है कि मुझ पर कोई भी चीज असर नहीं करती, जिस तरह वालिदैन मुझे नसीहत करते हैं या मैं बयान सुनता हूं, तो उसकी वजह यही है कि वो बंदा या अल्लाह की बंदी फजर के वक्त सोए हुए हैं और उनका दिल सख्त हो गया, और उस सख्ती की वजह से अब दिल हिदायत से महरूम हो गया। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि फजर और इशा की फजीलत क्या है, ऐसा बंदा जो चल के मस्जिद में नहीं आ सकता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसे ये पता चल जाए कि फजर और इशा की नमाज की फजीलत क्या है, वो अपनी सौरीन को जमीन पर घसीटते हुए आके नमाज में शामिल हो जाए, यानी अपना जिस्म जमीन पर घसीटते हुए भी वो नमाज में शामिल होता, अगर उसे पता चल जाता कि फजर की नमाज की शान क्या है। और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन, उनके नजदीक फजर की नमाज ईमान तोलने का तराजू है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, तो ये मैंने आपको फजर की नमाज के 7 बड़े फायदे बयान किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे और फवायद हैं जो यकीनन हमें नमाज पढ़ने से हासिल होंगे। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये अहद करें और ये वादा करें अल्लाह से कि आज के बाद हमारी कोई भी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। हो सकता है आपके एक शेयर करने से ये बात किसी के दिल पर असर अंदाज हो जाए, उसकी और उसके साथ हमारी भी निजात का जरिया बन जाए। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नए वजीफे और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।